blaming the Muslims for the defeat. I mean, come on. Are the Muslims so much? I mean, how much is the Muslim vote in Maharashtra? What you told the BJP was right. You always knew they were not going to vote for you. Then why are you harping about it now? That's right. So what are you harping about now? That is number one. If they're not voting for you, they will vote for somebody opposite you. So they voted for... And Pradeep ji, even the OBC vote is shifted. Even the tribal vote, even the scheduled caste vote is shifted. और तो और छोड़िए, मायावती जी का जो वोट था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी निर्भर थी विदर्भ में, वो भी शिफ्ट हो गया, वो भी चला गया सामने कांग्रेस को. Exactly. और इस तरफ एनसीपी को. मतलब I don't know which world these guys are living in. Mr. Devendra Fadnavis is still saying that the difference between the Mahayuti and NVA is only 1%. And we're going to take over that 1%. God bless them all. They don't know who's standing in front of them. In front of them is a man called Sharad Pawar. You don't take him lightly. You take him lightly at your own peril. In any event, let's go to our next guest. Before we go to our next guest, I am so happy at the fact that Mr. Arvind Kejriwal has finally been granted bail. Yes. So, which means, Pradeep ji, he's been granted bail in PMLA. Which means there is no evidence against him. You can only be granted bail if there is no evidence against you. That's it. So, that particular argument has held water. Could it be something to do with the fact that, the election results or something? I mean, I'm not sure. But this is a real surprise. I don't know. No, we can very boldly say that the judiciary has acted judicially. You mean the judiciary has acted judiciously? Judiciously, absolutely judiciously. Fantastic. Very well. I mean, because this is the first time. There are lower court. Pradeep ji, yes, the Rouse Avenue Court Bilkul. is the special court. Yes. PMLA special court which is granted bail. So you can't even appeal against it. Let's be very clear. Because the PMLA court which has granted bail, you can't go against your own court. But of course you can. That's a separate issue. We also believe that every courts at every level, they have to show their fierce independence in certain matters. You cannot act under pressure. Whatever the pressure is, you cannot. Because here we are seeing things that, one thing why Prime Minister Modi has not probably got the majority is this totalitarian way of putting opposition in jail. Continuously. That's right. People are watching and people do act. That if you give him total power, he'll be more of a totalitarian. And as Mr. Chaudhary, the senior defense counsel for Mr. Arvind Kejriwal said, if they can do this to me as the chief minister, imagine what they'll do to an ordinary man. No say at all. I mean, come on. No say. Right, at the moment with us, after a long time, Dr. Seema Malik of the Sharad Chandra Pawar NCP. Dr. Malik, very good evening, ma'am. Namaskar. Good evening. How are you, ma'am? How are you? She again thought of the new anchor sitting here. And congratulations, ma'am. Oh, what a performance. What a performance from Mr. Sharad Pawar. Absolutely wonderful. 8 out of 10, 80%. You won 80% of the seats that you fought. Fantastic. और आज शरद पवार साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए जो है उसको कम से कम मिनिमम 155 सीट मिलेगी असेंबली में, 155 सीट्स. आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, जरा बताएं प्लीज, योर थॉट्स. देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि हमें सीट्स मिलेंगी इतनी, और पवार साहब ने कहा है और हम लोग को भी लगता है ऐसा. और ऑफकोर्स कितनी सीट्स मिलती हैं उस पर डिपेंड करता है. एंड मतलब पूरा विश्वास है हम लोगों को कि हमें इतनी सीट्स मिलेंगी. और एक अच्छा वो है, क्या बोलूँ मैं, मतलब हमें लगता है कि हमें इतनी सीट्स मिलेंगी. और हम क्या बोलते हैं, आई डोंट नो. Dr. Seema Malik again has Baramati become the center point of fight in Maharashtra, political fights in Maharashtra. Because after Sunitra Pawar lost, again Sunitra Pawar ji ko Rajya Sabha mein MP banakar, Baramati has become the focal point of the entire political conflict in Maharashtra. Pawar Sahab has become very aggressive because Pawar Sahab ne clear cut kaha ki Modi ji, Supriya Sule has got more votes. The margin of victory of Supriya Sule is more than what you have done in Varanasi. Now, how do you see the conflict zone being Baramati? देखिए, उनको वोट्स मिले हैं और इतने सारे वोट्स मिले हैं, इतनी अच्छी मार्जिन से वो जीती हैं. और हमें ये सब बातें पहले ही बताती हैं, हम लोग हमेशा ही कहते थे ये चीज़. और
मतलब कुछ कहने वाली बात नहीं है ये, इतनी ज़्यादा उनको सीट्स मिली हैं, इतने अच्छे मार्जिन से वो जीती हैं। एंड मतलब समथिंग, मैं तो कहूँगी शायद पुरानी बात है ये, और अब आगे भी हमें अच्छे से काम करना है। एंड ऑफ कोर्स मोदी जी से भी ज़्यादा मार्जिन से जीती हैं, ये तो है ही। और यही सब क्या। पहले पवार साहब पे आलोचना था कि पवार साहब इज इंस्टिगेटिंग द मराठा एजिटेशन। मनोज जरांगे पाटिल जी जो भी आंदोलन कर रहा था, सब बोले कि पवार साहब इनके पीछे, शरद पवार साहब इज डूइंग दिस। अभी ओबीसी के लक्ष्मण हाके जी भी बैठे हैं आंदोलन पे, और उग्र आंदोलन, और दोनों बैठे भूख हड़ताल पर बैठे, अन्न वन्न कुछ नहीं ले रहे, दे आर टोटल अंडर। सो हाउ डू यू सी दिस, व्हाट्स हैपनिंग इन महाराष्ट्र इलेक्टोरली? कैसे देखते हो? बिकॉज विधानसभा इज जस्ट 2 months अवे। हाउ यू थिंक ये दो एजिटेशन कहां पर ले जाएगा स्टेट को? Has this government, Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar government failed to address these issues? बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए मतलब उन्होंने कुछ करा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। और जहाँ तक मराठा रिजर्वेशन की बात है, कुछ भी देखिए मतलब जो होना है उसमें तो यही है कि अमेंडमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ होना चाहिए उसका एक जो भी मतलब जो भी मतलब जो भी उसका जो सॉल्यूशन है वो उसको होना चाहिए। उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे वो लोग। तो देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन मराठास के लिए क्या कर रहे हैं वो। और देखिए जिस तरह से हम लोग ने हमेशा ही कहते रहे, पवार साहब ने हमेशा ही बोला ये बात कि आप जो भी है अमेंडमेंट करिए या कुछ 50% कैप के बारे में कुछ बात करिए। और हम लोग भी हमेशा इस चीज़ को रिपीट करते रहे हैं और हमेशा कहते रहे, पर कभी भी मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है इन लोगों को बेसिकली। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है मैम, वो तो सिर्फ राहुल गांधी जी, शरद पवार जी और अखिलेश यादव जी और बाकी जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो उसका एक्चुअल जेन्युइन सोल्यूशन जो है वो तो वही निकाल रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि जब तक वो 50% कैप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लागू किया गया है आरक्षण पर, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक आप आरक्षण दे नहीं सकते। क्योंकि मराठा आरक्षण आप देंगे कहाँ से? यू कांट गिव इट। देखिए वही तो हम भी कह रहे हैं, वही बात मैं कह रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं कह रही मैं। पता नहीं शायद आपको सेम थिंग यू आर रिपीटिंग सीम्स। देखिए मैं तो यही बात आपसे कह रही हूँ कि हम लोग शुरू से ही ये बात कहते हैं कि आपको 50% कैप को हटाना है। एंड अनदर थिंग इज कि वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, जो उन्होंने कभी करा ही नहीं, बात ही नहीं करते उसकी। तो वही बात है कि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। और हम लोग रिपीट करते रहते हैं हमेशा कि यू डू दिस। पता नहीं आज तो एक तरीके से देखा जाए कि असेंबली इलेक्शन जो आने वाली हैं उसके लिए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे इस सरकार से कि मराठाओं के लिए एक स्पेशल सेशन कैरी किया गया, और जिसमें सबको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। दे हेल्ड अ स्पेशल सेशन। उन्होंने कभी ट्राई नहीं करा सर, ट्राई नहीं करा उन्होंने कभी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हमारी क्या गलती है? हमारे लिए क्यों अच्छा है, या जो भी हमारे लिए क्यों अच्छा है? देखिए हम तो हमेशा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर आप करते ही नहीं वो लोग। तो बेसिक बात ये है, they should of course will raise this issue in the parliament and will try this thing कि हाँ कुछ हो, पर वो तो कुछ करेंगे तभी होगा ना सर, कुछ करते ही इनफैक्ट नहीं अभी तो एक और सिचुएशन बन गई है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। आज पटना हाई कोर्ट ने जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 62% दे दी थी आरक्षण, उसको खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको क्या लगता है किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे मराठा समुदाय को कि आपका आरक्षण फिर भी सुरक्षित है? मैम देखिए हम क्यों एक्सप्लेन करेंगे? देखिए हम तो कहीं नहीं रहे कि आपका सुरक्षित है या नहीं है। पहले हमें उठाना पड़ेगा ना उस बात को, तभी तो कुछ होगा। जब हम उस बात को कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कुछ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट। No, I am talking about the government. How will they explain to the Maratha community? Because they've been caught out. हाँ वो तो है, बट मतलब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो उनके जी प्रदीप जी, मतलब Seema Malik ji, there's a lot of talk politically
that Rohit Pawar wants to be the president, Maharashtra president, Rashtrabadi Party, जयंत पाटिल जी, और बहुत बहुत चर्चा चल रहा, जयंत पाटिल वर्सेस रोहित पवार, that Rohit Pawar want to usurp the post of Jayant Patil अध्यक्ष बना. So how do you see the entire thing coming up? I think Supriya Sune ji came and said that these things are not there. ये सब बातें हैं, there's no सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है. Rohit Pawar doesn't have any aim or ambition to be the president of the party. How do you see, but the rumor जो जिस प्रकार से चला, सीमा मलिक जी? हाँ जी, देखिए र्यूमर ही बोलेंगे हम इसको, और क्या बोलेंगे. एंड बोल ही दिया है मैम ने कि कोई भी इसमें कोई मतलब आधार नहीं है इस चीज़ में. और ये कहना मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है या कुछ ऐसी बात हुई है. तो मुझे लगता है नहीं कुछ भी ऐसी बात है. और So there's no factionalism. You're saying there's no factionalism. Yes. कोई झगड़ा नहीं है. जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं. Rohit Pawar is not ambitious. How can I say that he is not ambitious? Ambitious तो कोई भी हो सकता है, और होते ही हैं लोग. पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा नहीं होता जो ambitious नहीं हो. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके सीधे प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे या कुछ ऐसा. इनफैक्ट I met him also. He said कि नहीं, I'm nothing like that. So मुझे नहीं लगता. Pawar sahab, Sharad Pawar sahab, I've been talking, he's become very aggressive lately where Narendra Modi ji is concerned. उन्होंने कहा कि gone are the days where one person would lead one party, the country. आज पूरा बदल गया है, सीन बदल गया है. कोलिशन इज कम, 2 क्रचेस मोदी जी को लगेंगे, अकेला वो कुछ नहीं कर पाएगा. और मोदी जी ये कहते थे कि एक फोन पर इंटरनेशनल वॉर रुकाते थे. ये मोदी जी कहने वाले आज पेपर लीक्स, पूरे देश में जो नीट वगैरह हो रहा है उस चीज को रोक नहीं पा रहे. तो पवार साहब has become recently very aggressive against Prime Minister Modi. How do you see that, सीमा मलिक जी? देखिए, सेंटेंस ऑफ द डे है ये कि पेपर लीक नहीं रोक पा रहे और वॉर रोक देते हैं. हम लोग भी कई बार कह चुके हैं. और ये तो यही है कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. एंड जहाँ तक देखिए पेपर लीक की बात है, हम लोग बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं. कितनी बार वी टॉक्ड अबाउट दैट थिंग, पर कभी भी उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है. आज शायद अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो शायद इतना वो हल्ला हो रहा है, बात हो रही है. और अभी भी देखिए नीट तो नहीं करा उन्होंने कुछ भी. तो ये बात तो है ही है कि आप बातें करते हैं कि हम ये करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब पेपर लीक को कर सकते हैं एंड ही कैन नॉट तो मैम, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस नीट स्कैम? ये जो नीट का मसला चल रहा है, boys and girls appearing for medical entrance examination, their entire future has been brought into doubt. I mean, God knows what they would be feeling like at the moment, ma'am. कैंसिल करना चाहिए, सीधी सी बात है, बट दे विल नॉट. अभी कि इतना बोल रहे हैं सब करके, पहले वो आते हैं बोलते कि नहीं कोई बात ही नहीं है, ये तो फर्स्ट सेंटेंस ही सेट की कुछ ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एन स्कैम और समथिंग. एंड जो भी है उनको कैंसिल कर. ये चीजें ऐसी मतलब सो दिस थिंग, वो कहते हैं कि हाँ भाई इतने हम तो वी आर यू नो नंबर या जो भी लाइक जिसका जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती हो उसमें वो बातें करते हैं. ग्रेस मार्क्स, कितने ग्रेस मार्क्स देते हैं, तो मतलब कुछ समझ नहीं आती ये चीज़ें. मतलब कोई तुक नहीं होता. मुझे लगता है कि क्या एक्सप्लेन तो नहीं सकते. तो यही वाली बात है कि उनको कैंसिल करना चाहिए उस एग्जाम को, बट दे आर नॉट डूइंग. तो क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी हम करेंगे, डू द प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग एंड वी आर रेजिंग दिस. और ये तो प्रूव भी हो गया कि पेपर लीक हुआ है. 4 या 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है. पेपर लीक हुआ है जहाँ पर एक ऐसी एग्जाम जिसमें इतने कम मार्क्स से इतना फर्क पड़ता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि कुछ भी किसी को इतने लोगों को एक से नंबर्स मिले हुए हैं, 100% मार्क्स मिले हुए हैं. तो आपको सब पता ही है, और वो भी एक एग्जामिनेशन सेंटर से. जी. तो देखिए पेपर लीक कोई नई चीज़ तो है नहीं. हम लोग पहले भी आपके शो पे बहुत बार उठाते रहे ये चीज़ें. अबाउट ये आरओ का हुआ था क्या पेपर लीक, अबाउट पुलिस भर्ती का हुआ था, बड़ा हम लोग बोलते थे हम लोग कि ये है.
नहीं करते मतलब लोग, पर पता नहीं अब कुछ उनको वही नहीं, लोग इतनी मेहनत से इतना पैसा खर्चा करके दे इस वो दे स्टडी एंड इतना सब कुछ करके एंड कुछ भी नहीं, एवरी टाइम देयर इज अ पेपर लीक, सो मेरे ख्याल से So शायद what do कुछ you होना expect will चाहिए। happen? What is your expectation? What do you think will happen? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं स्कैम है ही नहीं, कुछ धांधली नहीं है, जी ऐसा बोला कह उन्होंने। रही हूँ कि ऐसी चीजें लोग बोलते हैं कि क्या बोलोगे आप, हम लोग इतने दिनों से इन चीजों को उठाते रहते हैं कि भाई दिस अ पेपर लीक का वोटेशन, पर कुछ होता ही नहीं है। और मेरे ख्याल से अब कुछ होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए एग्जाम, अदरवाइज देयर इज नो दिस थिंग, Correct. That's what the students are demanding continue anyway. sitting। प्रदीप जी। सुप्रिया सुले जी ने क्लियर कट कहा कि आप एसआईटी इंस्टीट्यूट कीजिए। शी हैज आस्क्ड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ एसआईटी। बोले कि आप कब तक ये कैंसिल करते रहोगे, एग्जाम कैंसिल और एक के बाद एक लिख नहीं है। शी सेड दैट यूपीए बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन fair and with integrity, and people were proud of that particular institution. एग्जाम देते थे, they believed that this study करके हम लोग अपने आप को सिक्योर करते, फैमिली को सिक्योर करते। NDS 10 years has destroyed these institutions, destroyed the integrity, destroyed all the sanctity that UPA had conferred on these kind of institutions. Supriya Sule has given a very strong statement. How do you see that, Dr. Malik? लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, इतना हम लोगों ने मतलब पहले जो भी था पेपर लीक होते होंगे, कभी कभी हो जाते थे जो भी है, पर इस तरह से पेपर लीक होना एवरी टाइम, हम अब देखिए क्या मतलब स्कैम व्यापम क्या क्या एवरी टाइम दे बोस्ट की नहीं, हमारे टाइम में तो कोई स्कैम हुआ ही नहीं कभी, हम लोग को तो कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं है। व्यापम को ही देख लो कितना बड़ा स्कैम था, फिर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। एवरी टाइम दे यूज्ड टू बोस्ट हमारे टाइम में कोई घोटाला नहीं हुआ, हमारे टाइम में कुछ ऐसा नहीं है, तो ठीक ही कहा है मैम ने। इतनी उससे इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, इतनी उससे हम लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, नाउ दे शुड टेक सम डिसीजन ऑन दिस। देयर इज नो पॉइंट इन उसको इतना लंबा खींचने का। 5 6 7 8 10 डिबेट्स करेंगे किसी पे, खत्म हो जाता है अभी, क्योंकि शायद अभी ऐसे लोग भी रह जो इतना उठाते उस आवाज़ को। और अभी तो कुछ हो रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ हो रहा है फ्रैंकली, अदरवाइज से कुछ होता ही नहीं था। हम आपके शो पर कितनी बार बोलते थे पेपर लीक के बारे में, सो मेनी टाइम्स पेपर लीक कोई सुनता ही नहीं था कभी, अब तो लोग सुन रहे हैं, अच्छा है शायद कुछ होगा। In any event, I think the government will have to answer for a lot in the new Lok Sabha. प्रिपरेशन तो बहुत चल रही है कि नई लोकसभा में इस बार तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। जी। वेरी हैप्पी कि चलो तो अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बार तो 303 सीटें नहीं है बीजेपी की। जी बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बोला था कि नहीं होंगी, पता माने सर जी आपने कहा था, मानते हैं, बिल्कुल कहा था। कल नो डाउट मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने बोला विरासत को भी हम लोग संभालते हैं, विकास के बात भी करते हैं, विकसित भारत के सपने भी देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, नरेंद्र मोदी ने सवारा। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ टॉक दैट इज गोइंग ऑन वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कंसर्न। 800 साल के बाद पुनर्निर्माण नालंदा यूनिवर्सिटी, हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर सीमा मलिक? इज इट सो मच टू एग्जैगरेट अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग इट? एक्चुअली वो तो हमेशा ही करते हैं, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो हर एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के हाइप बना के एंड सब करते हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है। और मेरे ख्याल से यूपी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है उसमें, जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर जैसे भी हुआ, तो मतलब हाइप तो बनाते ही हैं वो, और बनना ही है। मेरे पहले वाले जो वो थे उन्होंने काफ़ी डिटेल में बोला था उसको कि ये है फिलॉसफी एंड ऑल एवरीथिंग, बट ये कि कुछ करें ठीक से एंड कुछ काम वाम हो वहाँ पर, ये सब है बेसिकली। फ्रैंकली में तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि वी मेक्स इतनी हाइप बनाते हैं हम लोग, इतना सब कुछ बोलते हैं, पर इससे क्या होता है सर? मेन बात ये है ना कि कुछ होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मैंने सब सुना हुआ अबाउट द होल हिस्ट्री, अबाउट ये तो 5-10 साल में डेवलपमेंट है कि एक एक चीज का हम हो हल्ला करते हैं, इवेंट कर देते हैं हर चीज का। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ इनॉग्रेशन होता था और उसके बाद काम शुरू हो जाता था, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब इतना करना और ये सब बोलना। अभी जैसे
मेरे पहले जो थे वो इतना बोले उसके ऊपर, बातें करने से तो कुछ होता नहीं है सर, मेन बात ये। जी, तो वही चीज़ है मतलब कि बातों पे जीएसटी नहीं लगता है, कहने का जी मतलब ये हुआ, जी राइट? प्राइम मिनिस्टर मोदी ओके राहुल गांधी जी ने कहा कि द इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस हैज डिस्ट्रॉयड द आइडिया ऑफ मोदी। मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी गारंटी, मोदी जी का क्या, तो द कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया राहुल गांधी से। आज मोदी जी हैज बिकम हम्बल, ही इज बिकम अ डेमोक्रेट। आज मोदी जी संविधान के सामने झुकता है, माथा टेकता है, एंड ही इज इंक्लूसिव, ही टॉक्स अबाउट एवरीबॉडी, ही सेज एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ दिस। So how do you see that? The change, is there a change in Prime Minister Modi's way of functioning? नहीं, देखिए बिल्कुल चेंज तो हुआ ही है और वो होना ही पड़ता है, मतलब मेन बात है। और सही बात बोली उन्होंने कि जो भी है अब उनको ये सब तो करना ही पड़ेगा। फिर भी मुझे लगता नहीं जो अपनी करतों से बाज आएंगे। ऑफ कोर्स इज ट्राइंग हिज दिस थिंग। तो क्या बोलूँ मैं आपको आई डोंट नो, जी, प्रोफेशन में बट जी यही मैं कह रही थी कि आई डोंट नो, बट वील हैव टू वेट एंड सी पुरानी ना मैम। पुरानी आदत है सर उनकी, और वो सब तो वो करेंगे ही, वो सब चीजें ना, तो बेसिकली तो तो अब तो अब देखना देखते हैं पड़ेगा क्या ना मैम होता कि है। अब ये कैसे, एक्चुअली दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड लुक दैट व्हाट ही डिड, मतलब which is going, what is but going do to you do क्या। think his functioning will change, actually change? We are hoping it will change. वो तो उनको करना पड़ेगा, इज नॉट उनके स्वभाव में नहीं है वो चीज़, पर वो उनको करना पड़ेगा, ये तो बात है ना। और वो तो हम लोग ट्राई करेंगे और हम लोग करवाएंगे। एंड बिल्कुल ये वो है कि जिस तरह की उन्होंने चीज़ें करी हैं, मतलब मुझे लगता नहीं उन चीज़ों को मैं पता नहीं किस हिसाब का स्वभाव है, फ्रैंकली उनके कोई भी अपने नेचर को नहीं लगता कि चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ें तो हैं, वो तो वो करेंगे ही, एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट एंड वी विल आल्सो ट्राई आवर बेस्ट कि क्या करते हैं वो, और हम लोग देखते हैं एंड डू Fabulous. Thank you समथिंग। so much, ma'am, for joining us on the show थैंक यू। and for your analysis. Thank you very much. Great pleasure as always talking to you. Thank you, ma'am. Namaskar. थैंक यू। That's a very satisfied, very satisfied Dr. Seema Malik after the performance of the Sharat Chandra Pawar NCP in Maharashtra. And why not? They've done really well. They've done really well. And as she says, we hope that Mr. Modi will change. But Pradeep, you notice she said, और अगर वो बदलेंगे नहीं तो हम तो करवाएंगे फिर। तो करेंगे सर। अजीज सर, आपने जो गिनाए इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स, राइट फ्रॉम, अब प्रियंका गांधी भी आएगी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अब जितने ममता, तो एवरी देयर गोइंग टू बी टफ फाइट। लोकसभा इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी फॉर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आप उसको चुप तो नहीं करा सकते, बिकॉज और इस बार लोगों को लोकसभा से निलंबित करना जरा मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा। इस बार नहीं होगा साहब, अप्रोर हो जाएगा, पूरे हंगामा हो जाएगा, इस बार नहीं कर पाएंगे, हिल जाएगा पार्लियामेंट। That's right. Even if the speaker is from the BJP, you may not be able to throw out so many people or suspend. 230 230 लोगों को एक साथ, 234 यस यस, of the India Alliance. एग्जैक्टली। Right. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. Big news of the day: Arvind Kejriwal gets bail. Second big news of the day, which is really and truly fantastic: Mr. Narendra Modi inaugurates the Nalanda University, resurrects the Nalanda University 800 years after Bakhtiyar Khilji had burnt it down. That's it. That's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम। वो जरा सब्सक्राइब जरूर करिए भाई चैनल को प्लीज. वो जो हाँ घंटी बज गई ना, हाँ सब्सक्राइब कीजिए. वो क्लॉक जो है वो नीचे बेल आइकन जो है उसके ऊपर जरा क्लिक कीजिएगा. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू. आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर